Assalamu alaikum, everybody. Welcome to Between the Lines. I'm Avira Bukhari, and with me I have Kanza Naeem. And the book that we're going to talk about is by Claire Keegan, and it's with the title Small Things Like These. Kanza, please tell us about it. Thank you, Abira. आज हम जो book हमने decide की है, it's called Tiger Beta mentioned Small Things Like These by Claire Keegan. She is one of the most famous authors जो हमारे contemporary दौर के हैं. She is Irish. She has a lot of short stories that have been adapted as films as well. And I love how she does the character building, and she does not exaggerate a story. She does not have to pile on drama to make it interesting. I love this thing about her, and I hope she writes more. So, if we talk about small things like these, storyline को पहले discuss कर लेते हैं. So basically, it's about a man called Bill Furlong, जो कि coal merchant है, और it's the story about his family and the town they live in, and it's a bad economy. And Bill Furlong is a kind person. He caters to the needs of others without having to. He does not put himself first. It's just his nature. And इस टाउन के अंदर लोग काफी सेल्फ सेंटर्ड हैं, अपने काम से काम रखते हैं. And it's a story about कि अपने काम से काम रखना and उसके नुकसान क्या होते हैं basically. It's not always the virtuous thing to do अपने काम से काम रखना. जब injustice हो रहा हो, somebody has to stem it. So generally, this is the story how he rescues a girl despite all the odds. And basically 1985 में सब कुछ set है. It's a town in Ireland. Bill has 5 daughters. He lives with his wife. और generally देखें तो एक काफ़ी monotonous किस्म की उनकी ज़िंदगी गुजर रही है. एक contrast भी दिखाया है between the husband and wife उनकी personalities में. Bill is a quiet person. He's kind. And his wife Eileen is she's a gossip basically, and sometimes Bill wonders they're आपस में they're happy, they're fine with each other. And but when I say happy, अगर हम Bill को assess करें उसके पूरे character को, he's not unhappy, he's not happy either. And in fact, the only time the word contentment या happiness type कैफियत उसके लिए जब इस्तेमाल हुई, वो at the end of the book हुई when he rescued the girl. And so when we talk about his past, his childhood, it is said of childhood के एक बच्चा at the mercy of बड़ों नहीं होता है, ठीक है? तो इसके लिए बिल के लिए अपनी अनवेड मदर के साथ होना एक बहुत ट्रॉमेटाइजिंग चीज थी, ठीक है, जो उसके अंदर वो उसकी ऑर्डिनरी लाइफ है, राइट. वो एक सर्कुलर मोशन में चीजें कर रहा है, इधर डिलीवरी देनी है, उधर देनी है, फिर ही कम्स बैक. और वो एक इवन इन मूवी वो ऐसे दिखा रहे हैं कि भाई एक सेम रूटीन है जो फॉलो कर रहा है, लेकिन उसके बचपन के इंसिडेंट्स का उस पे जो असर है उसने उसको इतना कन्फाइन कर दिया विद इन हिमसेल्फ कि वो बहुत क्वाइट है. He observes, he doesn't say much. He doesn't say much. That's how I define him. He's there, and his presence is the only thing that counts. And he doesn't speak much. Personality के ऊपर बचपन का बहुत बड़ा असर होता है. There is indeed no doubt about that. बचपन में he knew कि उसकी जिंदगी में कोई gap है. He has no idea who or where his father is. He's being bullied at the school. He wonders about it. He's just not talking about it. Even bachpan mein, he doesn't talk much, right? He never gets to ask his mother exactly where his father was. Plus, uske bahut bachpan mein she passes away, right? Then he wants to ask Mrs. Wilson, who has sort of adopted Bill, कि does she know कि उसके father कौन है, but he never gets the शायद उसमें हिम्मत भी नहीं है पूछने की, शायद उसको लगता है उसका place भी नहीं है पूछने का, because even if Mrs. Wilson was motherly towards him, she was not his mother.
and he was child of the help technically, right? एक बहुत बड़ी बैरियर था, बहुत बड़ा, although उसको वही वाली सारी जिंदगी में उसको अमेनिटीज जो थी वो वही मिली जो शायद मिसेस विल्सन अपनी औलाद को देती, राइट? एंड इट वाजंट हिज बट ही कुड यूज इट, राइट? ही ऑलवेज हैड द एक्सेस. तो एक तरह से ही इज लिविंग अ बेटर लाइफ अपने पीयर लेवल के जो उसके बच्चे होंगे. ऑन द अदर हैंड ही misses the presence of the father figure in his life. और फिर ये भी दिखा रहे हैं हमें किताब में साथ में कि नेड is acting like that father figure, right? उसको etiquettes and अपनी personal hygiene और ये चीज़ें नेड educate नहीं कर रहा है उसको, right? So he always keeps wondering where his father is. उसकी जिंदगी में एक खला है और वही उसकी बड़ा वो हो गया है, but that hole in his soul is right there. And in this book I've seen कि जैसे नॉर्मली बुक्स में दिखाते हैं ना कि एक औरत है वो सोच रही है, उसकी इनर वर्किंग्स बता रहे हैं, वो इस बुक में एक आदमी की इनर स्ट्रगल को बता रहे हैं उस तरह से जैसे नॉर्मली औरतों की बताते हैं. तो और वो उसका एक डिस्पोजिशन बड़ा अच्छा सा है. जैसे व्हेन आई बिगैन रीडिंग दिस बुक, जैसे क्रिसमस आने वाला है और उसने डिलीवर करना है कोड, एक बड़ी वार्मथ है इस बुक की ना स्टार्टिंग में. सो आपको ऐसा लगता नहीं है कि बाय द एंड कुछ बहुत ग्रेव हो रहा होगा और वो रेस्क्यू करेगा किसी को. एंड जब तक वो वहाँ कॉन्वेंट में जाता नहीं है लॉन्ड्रीज में और देखता नहीं है कि वो फ्लोर्स को मॉप करी हैं और फिर वो एक लड़की को सारा को या आई थिंक कुछ और हो कोई और होती है जिसको वो नंस ड्रैग कर रही होती है अंदर. तो तब तक उसे आइडिया या हमें भी इवन आइडिया नहीं होता कि यार ये इतनी डिस्पोंडेंट सी एक चीज बन रही है ना या स्टोरी की. अदरवाइज बड़ा अच्छा सा वार्म, एग्जैक्टली ये वार्म वाली चीज जो है ना दैट आई वुड इनटू दिस वैसे आती है. तो उसकी 5 बेटियां हैं, उसके दिल में अपने पास्ट का भी चल रहा है, अपनी बेटियों की भी फिक्र चल रही है कि अच्छा इन्होंने बड़े होना है और ये निकलेंगी दुनिया में. फिर उसकी वाइफ है, उसका एक अपना नजरिए जिंदगी को लेके. yeah, she's sort of very typical. ऐसा ही दिखाया है ना, like एक तो कुछ इनके differences. Yes, Bill Furlong was not a rich guy, but वही बात कि उसने सब देखा हुआ था, right? So when his wife ends up buying cheap trinkets, he hates it. When she talks about money, he hates it, right? She acts like she actually gets furious जब वो किसी को पैसे देता है, and she's always mad at him कि इतने दयालु मत बना और stuff like that. And when the mother superior was it? When she tries to bribe him, when Eileen gets to know about it, she is glee थी. He says glee था, right? And she's very happy कि इतने सारे पैसे हैं. And like, hey, that was bribe, right? हाँ कि ये अपना मुंह ना खोले किसी को उस पता है ना. लेकिन देखो फॉरवर्डली जब वो जाता है तो एक लड़की उसके पास आती है जो उसे कहती है कि बस मुझे दरिया के पास ले जाओ, मैं खुद ही डूब जाऊंगी. वो पूरी कहानी उसको करती है. उसके बाद जाके जब वो आइलीन से बात करता है तो आइलीन का जो एक होता है ना स्टांस और वो डिपेक्ट करता है आई थिंक हमारी सोसाइटी को भी और ओवरऑल एक टेक जो दुनिया का होता है कि यार हमारे साथ तो नहीं ना ये हो रहा, किसी और के साथ हो रहा है, हमारी बेटियों के साथ नहीं ऐसा होगा. सो बड़ी एक अजीब सी चीज हिट करती है कि अच्छा एक वुमन ऐसी बात करिए जबकि एक आदमी बात करे इमोशन के उससे. बिल्कुल ऐसा. तो फिर मूविंग ऑन जब वो दोबारा जाता है वहां और उसको कोच शेड में वो लड़की मिलती है. फिर क्या होता है? ये होता है कि first of all, and nobody was supposed to be in the coal shed, right? He unlocked it from the outside, and there's a girl locked inside. That's very obvious कि इसको वहाँ बंद किया गया है. वो वहाँ छुपी नहीं हुई है, उसे practically बंद ही है वहाँ पे. That says a lot of things, right? कोई भी मतलब समझदार कोई भी इंसान हो, they can tell this person is in trouble, right? But he is on sacred grounds right now. He is in the church. It's a convent, right? So this is something he has heard rumors of, but he has never seen, witnessed this beforehand, right? Kansa, how about we talk about the Magdalene laundries, the asylums?
that would really, add to. Yes, so basically, although this is a fiction, but it's based on the true events that happened. Magdalene laundries did exist. और इफ आई एम करेक्ट आयरलैंड में तो हम अभी 1980s की बात कर रहे हैं ना, लेकिन 1800s में वी सीन दीज लॉन्ड्रीज इन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इट्स लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड. I 2013 में ये fully बनी है. It's such a shocking thing. अभी की बात है, literally. And अच्छा, by the way, my father said the same thing. I told him what we were going to discuss this time, and he asked me what it was about. And when I said कि I'm talking about 1985, he was like, नहीं 1885 होगा. मैंने कहा नहीं, I am sure कि ये अभी की बात है, because the Irish government, very recently, they actually apologized for it. They took responsibility and apologized because in one of the convents, I think in 1993, there were 155 unmarked graves of citizens, right? So ये चीजें इतनी हमारे recent past में हुई है, और खौफनाक बात है बहुत ज्यादा कि were the people asleep? क्या हो रहा है? ये अलाउ कैसे किया? ये कैसे हुआ? क्या इतना उनको कैसे डिग्रेड कर सकते हैं? ये इंस्टीट्यूशंस बने इसलिए, और चर्च के अंदर ये सारा कुछ था, रिलीजन क्या लेबल लगा के जी वहाँ इधर बैठ गया ऐसे, हम इनको रेक्टिफाई करने के लिए, इनको प्योरीफाई करने के लिए जी लेके जा रहे हैं. फॉलन वुमेन को बेसिकली लेके जाया जाता था ना, तो इससे इंसान सोचता अच्छा गुनाह से फौरन ने किया था. हाँ, ये उन्हें लगता था कि अच्छा ये गुनाह कर सकती है तो चलो इसको ले जाओ. सो इस लड़की जो इसमें थी लॉन्ड्रीज में, वो अपनी स्टोरी का बता दी कि उसका स्टेप फादर था एंड ही वाज अ वेरी बर्ड हु यूज्ड टू हरास हर, एंड शी वेंट टू द नन्स, और उसने जाके उन्हें बताया सारा इस तरह कि मेरी मदर को भी पता है, तो हाउ अबाउट यू कम एंड रेस्क्यू मी. नेक्स्ट डे वो आके उसको लॉन्ड्रीज में ले गए. अब फिर वो 3 years वहां पे रही, तो किसी दिन उसका भाई आया उसको लेने, तो नन्स ने ना आज के $3 दिए कि ये इसने 3 साल जो काम किया है ये इसकी पेमेंट है. तो मतलब दे वरंट इवन पेड, और उनकी किसी भी चीज का ख्याल नहीं उधर किया जा रहा होता था, जिस और इतना प्राइवेट एक वो बनाया हुआ था कि हाँ यहाँ पे तो हम इनको ठीक कर रहे हैं. तो बंदा कहता है कि सोसाइटी के अपने मसले और गुनाह छुपाने के लिए वो क्या मतलब लड़कियों को इस तरह कर रहे हैं सब्जुगेट. व्हाट डू यू थिंक? I think when I was reading it, एक है ना, मतलब basically these are supposed to be the socially unacceptable women, right? If somebody, एक तो ये सारे underage थे, most of these girls were under 18, and if somebody is expecting a baby out of wedlock, ठीक है जी, उसको rehabilitation के लिए आने भेज दिया convent. What about the man who got her? Hey, what happened to them? It is too. Right? It's not like are they being rehabilitated? Are they मतलब उनके लिए क्या किया जाए? वही बात है, whose purposes are served. Yes, इस तरह से. and to think कि this happened a Catholic Church की supervision में हो रहा है. They are religion के context के अंदर छुप के, मतलब आप religion को use कर रहे हो, misuse कर रहे हो in fact. और the worst part is कि we see it all around us. हम अपने आज के दौर पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं. Even वो तो चलो कैथोलिक चर्चेस है ना, हम कहते हैं we are very proud of being Muslims, right? But what about हमारे मदरसे, क्या क्या नहीं होता आज अभी 2025 में. And वो religion के नाम पे exploitation है ना. And there are so many people who are कम एजुकेटेड है, उनके पास नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, वो चीज़ों को बिलीव करते हैं. दे वुड एक्चुअली बाय इट कि अच्छा रिलीजन के नाम पे है तो इट मस्ट बी ओके. अच्छा ये मौलवी साहब कह रहे हैं तो इट मस्ट बी ओके. बट लाइक वी हैव टू स्टॉप, आई थिंक कि कैसे इट्स नॉट ओके. अब इन इस केस में द कैथोलिक चर्चेस दे आर डूइंग इट and the economy is very bad, right? Though since they are bringing in the money in a small town, everybody is deciding एक मजमूई डिसीजन है उनका टू लुक द अदर वे, एंड इट्स वेरी अलार्मिंग कि नहीं कर सकते. अभी बिल फरलॉन्ग ने भी पहले रूमर सुनी थी, उसकी बीवी भी उसे बताती थी, बट
उसने जब आंखों देखा सिर्फ तब उसने एक्शन लिया, और वो भी शायद इसलिए कि उसकी अपनी पर्सनल लाइफ से इतना वो मिलती जुलती स्टोरी थी। एक तो कोइंसिडेंस ये है ना कि हिज मदर वाज कॉल्ड सारा एंड द गर्ल इन द शेड वाज कॉल्ड सारा, इट मस्ट हैव ट्रिगर्ड समथिंग, राइट? और उसकी अंदर से वो जागा कि अगर मिसेस विल्सन भी मेरी माँ के साथ ऐसा करती इंस्टेड ऑफ टेकिंग हर इन, he wanted to make a difference, right? So he did what nobody else was willing to do. Even the women at that क्या था diner था जहाँ वो सब लोग बैठ के खाना खाया करते हैं when they're done with the work. Keyholes, I think that's what it was called. तो even that woman told him कि उसने सुना है कि वो convent में गया, mother superior से मिला, and she advises him to mind his own business, right? That's what everybody's doing. So एक दो चीजें हैं जिन पे मेरा ना confusion भी है, and it's more like maybe the book did not meet my expectations. एक तो मुझे बिल फरलॉन्ग का जब फर्स्ट इंटरेक्शन होता है सारा से, he goes into the convent with her, he doesn't want to leave her side because he knows something is wrong, right? फिर वो नन्स और वो मदर सुपीरियर के साथ इंटरेक्शन होता है, वो उस बच्ची को ले जाता है कि अच्छा इसका हुलिया दुरुस्त करना या देन मदर सुपीरियर इज टॉकिंग टू हिम, उसको एट होम फील करा रहे हैं, चाय शाय पिला रहे हैं और फिर पैसे दे के भेजते हैं। वो बंदा पैसे लेके आ जाता है। His first reaction was to accept the bribery. He knew what was going on, and in that moment, he was very weak, and he accepted the bribery. लेकिन उसके ज़मीर से हजम नहीं होता है, तो इसलिए वो दोबारा जाता है। कंसो लेकिन ऑल अलोंग वो सोच नहीं रहा होता, मुझे तो ऐसे ही लगता है कि कुछ अंदर चल रहा है मुसलसल। जब वो ऑर्डिनरी लाइफ की भी चीजें कर रहा है ना, तो भी उसके अंदर ये चीज चल रही है कि कुछ गलत था और मुझे कुछ करना है। सो मे बी उसकी सेल्फ हीलिंग हो रही है किसी तरह के, सेल्फ रेस्क्यू करेगा तो अपनी माँ को संभाल करे। आई डोंट नो, मुझे ऐसे ही लगता है कि शायद वो उसका कुछ बचपन का है जिसको वो उधर से ना अपने आप को क्लोजर दे रहा है। That's true. So that यही बात अगर मैं सोचूं ना, I end up thinking, did he just do it for himself? Was it an act of kindness towards somebody, or was it an act of kindness for himself? और जो भी था, फिर मुझे ना एंड पे यूँ भी होता है कि मुझे लगा अब वो कॉन्वेंट जा रहे हैं ना वापस, मे बी कोई कन्फ्रंटेशन होगी, मे बी ही विल सी। सिर्फ देखो कितना कैजुअली वो अपनी वाइफ के जूते लेता है उधर से, जो उसने उसको गिफ्ट देना होता है क्रिसमस पे। आराम से अपना हेयर कट कराने के बाद जूते जी कलेक्ट किए और ज्यादा से ज्यादा वो कॉन्वेंट जाके उसको वहां से निकालता है, अपने साथ ले आता है और बस वो आ रहे हैं और वो आ गए। ठीक है, घर की जब वो आ रहे हैं बाय द वे, उस वक्त भी नोबडी बॉदर्ड कि कौन है ऐसी साथ, किसी ने हेल्प करने की कोशिश नहीं की। एक बच्ची नंगे पाँव चल रही है, इट्स रियली कोल्ड, राइट? एंड नोबडी केयर इनफ टू आस्क कि डू यू नीड हेल्प। सच मुझे ये वाला सीन में ऐसे सा लगता है कि देखो उसके हाथ में जूते हैं, आई नो ये पास यस, आयरनी है बहुत। या तो इसकी भी कोई सिग्निफिकेंस है। प्रिविलेज, हाँ शायद। और जूते लेकिन आयरन के तो वो उसको पहना भी नहीं सकता, बिकॉज वो तो पहले ही उसे पता है अभी वो घर जाएगा तो क्या होगा। टाउन तो बाद में आता है। हाँ लेकिन वो सोच नहीं रहा है, उसका कॉन्शियस जो है ना वो क्लब के ऊपर आके। और दैट वाज द ओनली टाइम एक्चुअली जब वो फाइनली कंटेंटमेंट फील कर रहा था। ही न्यू क्या होगा भी जब वो घर के अंदर दाखिल होगा, बट ही डिडंट केयर अबाउट दैट इन दैट मोमेंट। अच्छा लेकिन वो ही दिखाता है ना कि एक ऑर्डिनरी मैन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग कर रहा है। ठीक है, सो उसका क्वाइट हेरोइज्म है एक, और ये कि ये तो हर बंदा जो वो केपेबल ऑफ बिग थिंग्स, ऑफ काइंडनेस, ऑफ हेल्पिंग अदर्स। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन आती है which is that was there any point in being alive without helping one another? तो ये बहुत मुझे अच्छी लाइन लगती है उसकी कि फाइनली वो वॉइस करे अपने इनर इमोशंस को ना, अदरवाइज ही जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन लाया। तो अदर देन दिस आई थिंक his responsibility
begins the moment he notices कि कोई मसला है. You getting it? Yeah. कि जब तक तो आप नोटिस नहीं करे, ठीक है, यू फ्री, लेकिन आपको जब पता लगे कोई मसला है एंड देन यू डोंट एक्ट, तो फिर आई थिंक आप पे बहुत जिम्मेदारी आती है कि यू डू समथिंग अबाउट इट, राइट? एंड देयर इज अनदर थिंग, okay, it is set of power that it lives in the widest routines. So collective silence is also about the power that society has over the meek creatures. ठीक है? जैसे आप जो फॉलन women है, उनकी क्या सोशल स्टैंडिंग है? कोई नहीं है. सो हु गेट्स टू डिसाइड कि अच्छा एक औरत को एक आदमी रेस्क्यू करे, जैसे मुझे बहुत इश्यूज पॉइंट्स है कि ठीक है, बिल रेस्क्यू कर रहा है उस बंदी को, क्यों कोई औरत क्यों नहीं करी, आईलीन क्यों नहीं करी, उसने क्यों नहीं डिसाइड किया? देन अगेन आई एम मेड टू थिंक यार वो उस पोजीशन में नहीं है, सोसाइटी ने इतना दबा लिए, इतना दबा दिया, वो खुद भी वहां से भाग सकती थी. वो शेड में जब छुप गई आके तो वहां से बाहर एग्जिट तो करीब है, लेकिन मेंटल बैरियर्स हैं. वह छुपी नहीं थी. She was locked in. नहीं हंस, Bill Furlong जब आता है, he unlocks it from the outside. And then Mother Superior, she makes excuses कि तुम्हें वहाँ किसने बंद कर दिया. हाँ हाइडल से गिर रही. Yeah. So that girl is quiet because she knows better. Mother Superior क्या दिया वो नहीं बोल सकती. She's scared. She has. Plus एक ये बहुत tragedy दिखाई है ना कि apparently they take her baby. Right? So she's traumatized in that moment. वो कुछ भी नहीं अपनी favor में बता पाई. But Bill unlocks the shed from the outside, right? और जब वो वापस आता है on Christmas Eve, was it? वो जब शॉपिंग करके वापस आता है, जूता ले, यार सॉरी वापस नहीं, जब जूता लेके जाता है, अगेन ही अनलॉक्स इट फ्रॉम द आउटसाइड, राइट? ही ऑलरेडी नोज कि वो इधर ही होगी. वो आता है वही पैटर्न फॉलो करना. आई एम मेड टू थिंक इसको लॉक कौन करे. That's the thing, it's the nuns, right? Because nuns बहुत illegal activities कर है ना. लेकिन देखो जब हमें पता है कि एक बार उस बंदे ने उसको वहां से निकाला है. They are counting on the bribe. They think their work is done. और चूंकि उसकी 5 बेटियां हैं, उसके बहुत खर्चे हैं, वो खुश हो गया, उसका मुंह बंद कर दिया बेसिकली. तो उस आईलीन को बता के एक स्टैंप लग गई है उसके ऊपर कि अब वो कुछ नहीं बोलेंगे. Because he wasn't going to tell Eileen, right? But she did to उसको empower करने के लिए ना, overpower करने के लिए कि अब इसकी वाइफ इस पे प्रेशर डालेगी. And Eileen is the kind of woman जो अपने आप को फर्स्ट रखती है, अपनी फैमिली को फर्स्ट रखती है, राइट? एंड मे बी दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि मतलब वो बहुत क्या कहते हैं, कन्विंस्ड है कि समथिंग लाइक दिस कैन नॉट हैपन टू हर गर्ल्स. ये और तरह की गर्ल्स के साथ होता है. शी हैज लेबल्स, राइट? शी इवन सेज द सेम थिंग अबाउट हिज मदर टू हिम, टू बिल, एंड ही फाइंड्स इट शॉकिंग. तो Eileen has a certain mindset, and that is जो मदर सुपीरियर उसी को ना एड्रेस देती है बेसिकली. तो basically she could not run. Nobody was allowed inside, nobody was allowed outside. और ये अंडर एज बच्चियां हैं, ये बाहर उनके पास घर भी नहीं है जाने, बिकॉज घर वाले ही यहाँ छोड़ के गए. सो इट्स वेरी ट्रेजिक एक्चुअली. एंड वो लड़की जो पहले आती है दिल के पास, वो नहीं कहती है ना कि अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं लेके जाते, आई रादर ड्राउन, मुझे रिवर के पास ही छोड़ दो. इतनी पैथेटिक क्वालिटी ऑफ लाइफ थी उन बेचारों की. टू थिंक कि असल में हुआ है नॉट मेनी इयर्स अगो, कुछ डेकेड्स पहले की बात है. सो या How about the title, small things like these? मुझे लगता है वही काइंडनेस और कॉन्शियंस, ये सारी चीजें दे टर्न इनटू लाइफ एंड दीज आर द थिंग्स दैट मैटर एक्चुअली. और ये आपको एक ऑर्डिनरी बंदे से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदा बनाती हैं. वेरी ट्रू. सो लेगेसी एक चीज नहीं है, इट्स लॉट ऑफ थिंग्स. वो आपकी काइंडनेस हो सकती है, वो आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, वो आपकी ब्रेकिंग द बैरियर्स वाली चीज हो सकती है. यू जस्ट स्टेप आउट and you step up in a way. Yes. So Bill does a lot in this case. I mean, वो नहीं सोचता कि अच्छा अब क्या होगा. He just gives up his comfort
और उसका ज़मीर मुनफिन है, उसने जो चीज़ नोटिस की, अच्छा उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं इसको रेस्क्यू कर रहा हूँ, एंड इन डूइंग दैट वो अपने अंदर ही बहुत कुछ हील कर चुका है। सो उसके लिए अब उसको फर्क नहीं पड़ता कि अब दुनिया क्या कहेगी, हालांकि उसकी 5 बेटियां हैं और उसकी एक बीवी है जो आई थिंक दुनिया से पहले उसको उनको जवाब दे होना है। ट्रू। वो लेकिन स्टिल ही वेंचर्स इनटू डूइंग बिग थिंग और उसका बहुत बड़ा रोल है आई थिंक। I believe this was the moment जहाँ पर उसका कॉन्सेप्ट ऑफ लेगेसी शिफ्ट हो गया था। इससे पहले इसकी लेगेसी थी हु इज माई फादर, विल एवर टू सी हिम। इवन बचपन में क्रिसमस में ही वांट्स आइदर दैट puzzle or he wants his father. This Christmas, he almost found out who his father was, and again he goes to the store to buy a jigsaw puzzle. And I think he ended up solving the puzzle. You know, it was very symbolic. He decides to solve it all. He just goes there. He changes. अब ये उसकी legacy है. That heroism he just did, right? He is पता नहीं शायद वो अपने पास्ट से he's done pondering over it कि कौन है उसका बाप, right? उसने अपने खला को इस चीज से फिल करी है, किसी और के लिए वही बन गई जो वो ढूंढ रहा था। कैसे हाँ बिल्कुल। सो आई डू फील कि शायद बस एक ना वो रहे मुझे कि एक तो उसने घर भी एक्सेप्ट करी and then he goes into the convent and doesn't talk to anybody. Is he not going to tell Mother Superior कि ये पकड़े अपने प्लस nothing like that, nothing dramatic actually. शायद ड्रामा ही मुझे वो लगा कि ड्रामेटिक नहीं हुआ शायद। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अच्छा अभी आगे कुछ होगा लेकिन वो बस लीनियर सा या सारा जाता रहता है। थोड़ा abrupt मुझे लगा, मुझे लगा शायद। नहीं मुझे नहीं ऐसे लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ ये उसने सही किया। सिंपल था। हाँ सिंपल था, सीधा था। Well, generally, I love how this story has been portrayed. Kansa history teaches us that the world is changed by people who refuse to look away, and a ripple is awakened with a stare. Thank you.